شام کے وقت سب تیار بینکویٹ پہنچ چکے تھے۔ سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ سب بڑی شدت سے دولہا دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ ہال میں مدھم آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ لڑکیاں سب آپس میں باتوں میں مگن تھی۔ لڑکے سب بڑوں کے پاس بیٹھے بزنس کے حوالے سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ بڑی خواتین سب آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ جبھی احمر ایمان کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ احمر ایمان کو اپنے ساتھ لیے انٹرس سے اندر بڑھا تھا کہ کئی ستائش بھری نگاہیں دونوں پر اٹھی تھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، بلیک ہاف سلیو ویسٹ کوٹ پہنے، بھورے بال ماتھے پر بکھیرے وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں کھڑی اس کی مولانی سلور کلر کے پیروں کو چھوتی فراک پر ریڈ دوپٹہ جس پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، اچھی طرح سے اپنے سراپے پر سیٹ کیے اس کا نازک سراپا مکمل چھپ گیا تھا۔ اس پر سلور کلر کا حجاب اوڑھ کر بڑی خوبصورتی سے چہرے پر نقاب لگائے وہ ڈھکی چھپی سی احمر کے ساتھ کھڑی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جچ رہے تھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے اچانک سے ان پر پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ یکدم سے ساری لائٹس آف ہوتے ہی ایک فوکس لائٹ ان دونوں پر جمی تھی۔ احمر ایمان کے گرد اپنا حصار مضبوط باندھے آگے بڑھا تھا۔ جیسے وہ بڑھ رہے تھے دونوں پر پھولوں کی بارش ہوتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی میوزک سسٹم پر سانگ پلے ہوا تھا، تو نے زندگی میں آ کے زندگی ہو، زندگی بدل دی۔ مدھم آواز میں چلتا میوزک جس پر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پھولوں کی راہداری پر گزر رہے تھے۔ کئی حسد بھری اور رشک بھری نگاہیں ان پر جمی تھی۔ احمد نے اپنے تحفظ کا احساس دلاتے اس کے ہاتھ پر اپنا انگوٹھا سہلایا تھا۔ تو نے پیار یوں نبھا کر زندگی ہو، زندگی بدل دی۔ اب گوارا نہیں کوئی اور بھی جو میری طرح یوں تم پر مرے، چھونا تو دور ہے اب نامنظور ہے جو میری طرح تیرا ذکر بھی کرے۔ گانے کا ہر بول اس کی جذبات کی عکاسی کر رہا تھا، جس سے وہ گانا نہیں احمر کے دل کی آواز ہو۔ احمر ایمان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے سے باور کروایا تھا، تو نے فاصلے مٹا کر زندگی ہو، زندگی بدل دی۔ تیری تعریف اگر آئینہ بھی کرے تو اردو میں اسے دل میرا کہے، تو ہے میرا جنون میرے دل کا سکون، میں دیوانہ ہوں تیرا کوئی کچھ بھی کہے۔ اسٹیج پر پہنچ کر احمر ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھنے میں مدد دی تھی۔ وہ ولہانہ نظریں سے ایمان کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کرے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ یہ دیوانگی بڑھا کر زندگی ہو، زندگی بدل دی، تو نے زندگی میں آ کر زندگی ہو، زندگی بدل دی۔ وہ اسے اپنے برابر اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ جیسے گانا ختم ہوا ساری لائٹس آن ہوئی تھی۔ سب سٹیج کی جانب بڑھے تھے۔ سمیر، سجل اور سومی سن کے پاس تھے۔ وہ دونوں ان کے آتے فوراً سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر نہایت ہی عزت و احترام سے ان سے ملے تھے۔ ایمان نے سمیر کے سینے سے لگ کر پیار وصول کیا تھا۔ فیملی کی سب لڑکیاں لڑکوں نے سٹیج پر دھاوا بول دیا تھا۔ اب سب ایمان کو احمر کے حوالے سے چھیڑ رہی تھی، جبکہ لڑکوں کی ہمت نہ تھی کہ وہ بھابھی کا نام لے کر احمر کو ٹیز کرے، اس لیے وہ شرافت کا لبادہ اوڑھے احمر کو گھیرے بیٹھے تھے۔ بڑے سب ایک ساتھ بیٹھے اپنے بچوں کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا مذاق کرتا دیکھ رہے تھے۔ فنکشن نہایت ہی خوش اسلوبی سے انجام ہوا تھا۔ سب بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ سب مہمان جا چکے تھے، اب بس اپنے اپنے ہی رہ گئے تھے احمر میں گھر میں۔ ایمان نے سرگوشی میں احمر سے بات کرنا چاہی کہ وہ گھر چلی جائے۔ ابھی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ بات کاٹ گیا۔ بالکل نہیں مولانی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں تمہیں پل بھر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے سکتا۔ احمد شدید بے بسی لیے بولا تھا۔ وقت کم مطلب؟ ایمان تو اس کی بات سن کر ہی ہول اٹھی تھی۔ مطلب کہ میں کم وقت کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، وہ جنونی انداز میں بولا تھا۔ سالے صاحب ابھی میں اپنی بیوی کو نہیں بھیج سکتا۔ اس سے پہلے کہ سمیر کہتا احمد سب کی معنی خیز مسکراہٹ کی پرواہ کیے بغیر سمیر سے بولا تھا، کبھی تم مجھے بھائی بھی بلاؤ گے؟ سمیر نے اسے گھور کر احساس دلایا کہ وہ اس سے بڑا ہے، بھائی بول دے۔ ہاں جی بالکل بلائیں گے، جب آپ کو ماموں کے عہدے پر فائز کہوں گے۔ احمد شرار سے بول کر نچلا لب دانتوں چلے دبائے چور نگاہوں سے مولانی کو دیکھا تھا، جو سٹ پٹا کر یہاں وہاں دیکھ کر خفا سے دور ہونے لگی تھی، جبکہ باقی سب اس کے یوں کہنے پر منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔
बिल्कुल, अल्लाह मेरे बच्चों को औलादे नरीना अता करे। रही से कसर बीजी ने पूरी कर दी थी, जबकि ईमान सजल और जरिश की ओट में होकर छुपने की कोशिश करने लगी थी। ऐसे बड़े ही कोई जल्दबाज इंसान हो। पास खड़े हसन ने अहमर को मुस्कुराता देख शर्म दिलानी चाहिए थी। तुम नहीं चाहते कि जल्द अज जल्द चाचू के ओहदे पर फाइज हो? अहमर ने से घूरा था। शर्म कर यार, आज वलीमा है तेरा। जबकि अहमर बस मुस्कुरा सका था। इसे नहीं पता था कि इतना वक्त लगेगा, इसलिए इसे इतने ही वक्त में वो जितनी मुस्कुराहट और खुशियां समेट सकता था समेट रहा था। आज रात 3 बजे इनकी फ्लाइट थी। इससे पहले अपनी मौलानी को दिलो जान से महसूस करना चाहता था। इसके वजूद पर, इसके दिल और दिमाग पर अपना अक्स, अपना जुनून, अपनी मोहब्बत नछावर करनी थी। इसे अपने आप में अपने इर्द गिर्द बस अहमर नजर आए। वह दूर जाकर भी इसके दिल पर हुक्मरानी करना चाहता था। तो आज चीफ के पास क्या था? हसन ने जांचती नजरों से देखा। अहमर ने हंकार भरा। हसन इसे खींचकर सबसे अलग थलग आया था। मतलब तू जा रहा है? हाँ। कब? रात 3 बजे। वापसी? कोई पता नहीं। और भाभी? तुम सब हो ना, अपनी जान से बढ़कर इसका ख्याल रखना। मुझे वापसी पर मेरी बीवी सही और सलामत चाहिए। हसन तो भाभी को क्या बताएगा? इसे बताकर नहीं जा रहा, किसी को भी नहीं पता। बता दे यार, अगर भाभी को तेरे यूं चले जाने का मालूम हुआ तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करे। हसन ने कहा। नहीं, ऑर्डर नहीं है, ना ही इस मिशन के मतलब किसी को बताकर जा सकता हूँ। तू जानता तो है ना। अहमर आजिज़ाता बोला था। ठीक है, एयरपोर्ट तक मैं तेरे साथ चलूंगा, भाभी की फिक्र मत करना। हम सब इसके पास हैं, बस तू अपना ख्याल रखना। हसन उदास से गले लग गया था। सॉरी यार, तुम लोगों की शादी पर नहीं होगा, पर मेरी बीवी होगी और वो यकीनन मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी। अहमर हसन को खुद में भीजे बोला था। दोनों दोस्त उदास थे, जबकि वह हम दूर खड़ी दोनों की उदासी नोट कर चुकी थी। जल्दी वह हसन से पूछने का इरादा रखती थी। इतना तो वह जान गई थी दोनों घर वालों से कुछ छुपा रहे हैं। मजीद थोड़ी देर ठहर कर वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में सवार अपने रास्ते पर गामसन हुए थे। अहमर ईमान को अपने साथ लिए मेंशन आया था। सीटिंग एरिया में बीजी, जरिश, महम सोफे पर बैठी इन्हीं का इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि ईमान इनकी जानिब बढ़ते हुए इसकी कोशिश नाकाम बना गया था। थक गई हूँ मैं, आप खवातीन सो जाए, बाकी बातें सुबह कर लीजिएगा। वो इन सबको अपनी सुनाता बगैर इनकी सुने ईमान की कलाई पकड़े सीढ़ियां चढ़ने लगा था, जबकि वो सब भौंक बनी इसे देखती रह गई थी। 7 माह बाद। अहमर कहाँ है भैया? समीर ने इसकी स्पाट आवाज पर नजरें उठाकर अपनी जान से अजीज बहन को देखा था। दिल जैसे कट गया था इसकी हालत पर। वीरान आंखें, सूखे लब, बिखरे बाल, दुपट्टा कंधों पर झूल रहा था। ब्लैक शॉल अपने भरे भरे वजूद के गिर्द लपेटे और रफ से हुलिये में सीढ़ियों पर खड़ी समीर को देख रही थी। वो आ जाएगा, समीर नजरें चुराते बोला। कब? कब आएगा? इसकी आवाज रंध गई थी। हलक में कांटे चुभने लगे थे। इसकी हालत देखकर बीजी, जरिश तो बकायदा बेआवाज आंसू बहाने लगी थी। बहुत जल्द आ जाएगा गुड़िया। समीर उठकर इसके पास आया था। वो नहीं आएगा भैया, वो बहुत बुरा है, इसे मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। अपनी आदत डालकर वो बिना बताए चला गया। मैं कैसे रहूं? मुझे हर वक्त इसकी याद आती है। इतने महीनों से इसने फोन तक नहीं किया। ईमान समीर के सीने से लगी आंसू बहाती हाले दिल बता रही थी, जबकि समीर की अपनी आंखें नम हुई थी। वो क्या बताता ईमान को, इसे खुद नहीं पता था अहमर कहाँ है। भैया इसे बुलाएं, इसे बताएं मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। अब कभी नाराज नहीं होंगी, ना गुस्सा करूंगी, ना कभी इसके खिलाफ जाऊंगी। जैसा वो कहेगा वैसा ही करूंगी। बस अहमर को ला दे समीर भैया। ईमान रोती हिचकियां भरती बोली थी। सब जैसे तड़प कर इसके पास आ गए थे। वजह सब ने इसके सर पर हाथ रखा था। बीजी इसकी हालत पर तड़प उठी थी। मत रो मेरी बच्ची, तुम्हारी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है। अपना नहीं तो इस नन्ही सी जान का ही ख्याल कर ले जो अभी इस दुनिया में नहीं आया। अहमद जब आएगा तो तेरी ये हालत देखकर खूब वबैला मचाएगा कि मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा। बीजी इसका दिल बलहाती बोली थी। वो आएगा ना? हाँ मेरी शहजादी, वो आएगा। मैं इससे नहीं बोलूंगी, वो हमेशा मुझे सजा देता है। वो रूठेपन से बोली थी। दिल को जैसे तसल्ली मिली थी, पर अहमद कहाँ ये कोई नहीं जानता था सवाए हसन और महम के। ईमान की हालत के पेश नजर बकायदा महम और हसन में लड़ाई रहती थी। वो बताना चाहती थी पर हसन ने सख्ती से मना किया था। अपने मकसद के बहुत करीब था। इन्हें बस थोड़ा सा और सब्र करना था। इन्हें बहुत एहतियात की जरूरत थी।
अहमद समेत वहां मौजूद ऑफिसर्स की जिंदगियां खतरे के गिर्द मंडला रही थी। दुश्मनों में घुसकर उन्हें भिनक लगे बगैर इनका किस्सा तमाम करना था, जिस काम को वो बड़ी ही सफाई से अंजाम दे रहे थे। जाओ जरिश बच्ची को कमरे में ले जाओ, बीजीज की हालत देखकर बोली थी। ईमान जो समीर के सीने से लगी खड़ी थी, एक उम्मीद के तहत किसके चेहरे को देखा। जाओ बेटा। समीर को इस वक्त अहमद पर शदीद गुस्सा आ रहा था, तो सबको बिना बताए वलीमे वाली रात ही चला गया था। हसन से पूछने पर इसने भी लाइल्मी जाहिर की थी। समीर पागलों की तरह इसे ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक इसके यूनिट से अभी पता करवाया था, पर इतना तो वो जान गया था कि वो साहबजादे जरूर किसी मिशन पर तशरीफ ले गए हैं जो अब तक खुद न सामने आए। इसे ढूंढना हमाकत के सवा कुछ नहीं था। समीर के कहने पर ईमान जरिश के साथ अपने कमरे में चली गई थी। ओके अंकल, अब मैं चलता हूँ। समीर इनसे मिलकर बाहर की जाना बढ़ गया था। 2 माह पहले इसकी प्रमोशन हुई थी। अपनी काबिलियत और जुर्रत की बुनियाद पर DIG के ओहदे पर फाइज हो चुका था। ऑफिस से घर जाते वक्त वो रोज ईमान से मिलने आता था। रोज ही ईमान का एक ही सवाल होता था, अहमद कहाँ है? और वो भी रोज एक ही जवाब देता कि जल्द आ जाएगा। समीर जैसे विला में आया था, सामने इसकी कुल कायनात, छोटी सी फैमिली आपस में खेलने में मगन थी। सजल किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, जबकि लॉन्च में सुमान अपनी दोनों बहनों को मुख्तलिफ टॉय दिखाता इन्हें सिखा रहा था कि ऐसे चलते हैं और ऐसा खेला जाता है। वो किसी बड़े की तरह इनको खिलौनों की तरतीब दे रहा था। वो मुस्कुराता है और इनकी जान बड़ा था। पुलिस यूनिफॉर्म में वो पहले की तरह भला का हैंडसम लग रहा था। इसने ब्रीड पहले से थोड़ी बड़ी कर ली थी। वही गहरी स्याह आंखें, शख्सियत में रख रखाव कुछ वडेरों जैसी झलक दिखती थी। अपने बाप सिकंदर शाह की तरह लग रहा था। 2 माह पहले ही तो इसकी जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, नैना शाह और अदन शाह। ईमान की तरह वह दोनों भी अपने बाप और भाई की लाडली थी। शाह विला हमदानी हाउस की इन दोनों परियों में जान बसती थी। दोनों इंतहा की प्यारी गोल मटोल सी थी। जुड़वा होने के बावजूद दोनों की अपनी अपनी खूबसूरत शक्ल थी। नैना शाह होबू समीर शाह की कॉपी थी, जबकि अदन शाह सजल की कॉपी थी। क्या हो रहा है? हम खेल रहे हैं। 2 in 1 रो रही थी। डैड बस इन्हीं को खामोश करवा रहा हूँ अभी, वो थका थका सा बोला था। सोमी ने दोनों का नाम 2 in 1 रखा हुआ था। लगता है आज मेरी शहजादी ने अपने शहजादे भाई को बहुत तंग किया है। समीर मुस्कुरा कर इन दोनों की काट की जानब आया था। इनको अपनी गोद में उठाकर इनकी नन्ही पेशानी पर बोसा दिया था। बहुत से भी ज्यादा डैड, ये फूफो की तरह सब्र वाली नहीं है। वो तो बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी और ये रो रो कर विला सर पर रख लेती हैं। सोमी ट्वाइस मेट कर बड़ों की तरह समीर को बता रहा था कि वो इतनी भी मासूम नहीं जितना इसका बाप समझ रहा है। अच्छा तो भाई किस लिए होते हैं? समीर इन दोनों को देखता कंधे से लगाकर बोला था। बहनों के नाज नखरे उठाने के लिए इनके साहिबान, जैसे आप हैं फूफो के लिए, वैसे मैं ही हूँ इन 2 in 1 के लिए। सोमी गहरी बातें करता इनको मोहब्बत से देखकर बोला था। फिर पर क्या डैड, ये विला सर पर रखे पाँव के नीचे, इनका भाई हमेशा इनके साथ है। डैड्स लाइक अ गुड ब्रदर, समीर ने सोमी को मोहब्बत से कहा था। वो बिल्कुल इसकी कॉपी था। अब तो बातें भी समीर शाह की तरह करने लगा था। समीर ने दोनों की गाल चूमकर वापस इनको झूले में लटाया था। सोमी, मम्मा कहाँ है आपकी? किचन में डैड, वो अपनी कॉपी पर झुका होमवर्क करते बोला था। समीर इसके बालों में हाथ फेर कर किचन में आया था। वो दबे कदमों अंदर आया था, जहाँ इनकी जिंदगी खाना बनाने में मसरूफ थी। इसे सजल के गिर्द हसार बांध कर इसकी पूछ सीने से लगाई, शाने पर ठोड़ी टिकाई थी। हमारे लिए भी कुछ वक्त निकाल ले जान, शोहर थका हारा घर आया है, इसकी थकन दूर करने का सामान करो। वो बोझल आवाज में इसके कान में सरगोशी करता सजल को सटपटाने पर मजबूर कर गया था। आपके लिए ही तो खाना बना रही हूँ। कपड़े आपके निकाल कर बेड पर रखे हैं, आप कमरे में जाए, मैं चाय पानी ले आती हूँ। सजल मुस्कुराहट दबा के इसे बताने लगी थी, जबकि समीर इसकी चालाकी पर खिलकर मुस्कुराया था। तभी इसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा था। चाय लेकर कमरे में आओ। इसकी गर्दन पर हल्की सी बाइट करता वापस मुड़ गया था। 3 बच्चों के बाद भी सजल इसकी शिद्दतों से बुखला जाती थी। वो आज भी इसे वैसे ही शर्माती थी। इनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा हसीन हो चुकी थी। इस अरसे में समीर के प्यार में जरा कमी नहीं आई थी। हाँ, जिंदगी कुछ ज्यादा मसरूफ हो गई थी। वो सारा दिन बच्चों में लगी रहती थी। समीर पर जिम्मेदारी बड़ी आ गई थी, तो रात देर से घर आता जब वो सोए होते,
तब समीर अपने बच्चों को बहुत प्यार करता, फिर सजल को बाहों में भरकर सो जाता। आज वो जल्दी घर आया था तो सजल इसकी शिद्दतों से बच जाए ये कैसे हो सकता था। कभी कभी वो जल्दी घर आता तो अपने बच्चों को जी भरकर प्यार देता कि पिछले सारे दिनों की कसर पूरी हो जाती थी। ज़हेब और जाज़म शाम को घर आए थे। सामने लॉज में सब बैठे बातें कर रहे थे। समरीना बेगम आफाक को गोद में लिए बैठी थी। इनकी बातों का मौजू आफाक ही था। आफाक शैला ज़हेब का एक माँ का बहुत ही प्यारा बेटा था जो बहुत ही संजीदा सब्र वाला था। अगर इसको फीडर ना भी दो तो यूं ही पड़े रहता, और रोना तो जैसे आफाक की तौहीन समझता था। एक माँ में वो एटीट्यूड रखता था, बड़ा होकर तो किसी को देखना भी गवारा ना करे। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों ने सबको सलाम किया था। क्या बातें हो रही हैं? आफाक क्यों इतना खामोश है? जाज़ब ने आफाक को देखकर मुस्कुरा कर कहा था। वो हमेशा ही खामोश रहता था। शैला ने जाज़ब को घूरा था। हाँ भाई, नखरे जो दिखाने हैं। जाज़ब भी कहाँ पीछे रहने वाला था। बाप पर जो गया है। अब की बार शैला ने ज़हेब को देखकर कहा था, जो खामोशी से अपने बेटे को गोद में लिए सोफे पर बैठ चुका था। इसकी बात पर ज़हेब ने आईब्रो झुकाई थी। मैंने कब दिखाए हैं नखरे? और तो फिर ये ऐसा क्यों है? शैला भुना उठी थी। वक्त देखकर वो इसे फीडर देती थी। कभी देर हो जाती तो भूख बर्दाश्त कर लेता, पर रोता नहीं था। कभी कभी तो शैला को लगता था कि पता नहीं बड़ा होकर बोलेगा भी ये नहीं, कहीं इसका बेटा गूंगा ही ना हो। कल इसने ज़हेब से कहा था कि ज़हेब ने अच्छा खासा डांट दिया था। तभी शैला का मूड सख्त खराब था। इसके बेटे ने इतनी सी उम्र में अपनी माँ की इंसल्ट करवा दी, जबकि बड़े सब इनकी नोक-झोंक एंजॉय कर रहे थे। नखरे में वो तुम पर गया है, तुम भी तो थोड़ा नखरा था ना। अब मेरे नन्हे से आफाक में है, उसकी गाल पर लब रखते बोला था। आफाक इसकी गोद में बड़ा खामोशी से इनको देखता अपने मुतल्लिक बातें सुन रहा था। इसे तो बख्त सीधा करेगी अब। जाज़ब ने फिर से टुकर लगाई थी। बख्त? अब सब ने इस बख्त का नाम लिया था। हाँ, बख्त इसकी मांग, वही इसकी जुबान खलवाएगी और कोई नहीं। जाज़ब फ्यूचर का सोच कर ही गहरा मुस्कुराता वहाँ से उठ गया था, जबकि अब सबकी नजरें आफाक पर थी। फिर सब खिलकर मुस्कुराए थे। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो छिपकली? वो कोट और ब्रेव की सोफे पर रखकर इसे बोला था। तुमसे मतलब? रिमशा ने प्लेट अपने पीछे छुपाते कहा था। अब इस सब के बाद भी मुझसे मतलब की वजाहत चाहिए क्या? जाज़ब इसके सरापे को देखकर मायनी खेजी से बोला था कि शैला गड़बड़ाई।